Hello to all. So today in Ru's classes, you all are welcomed. We are starting with the new lesson, that is the nutrition in plants. To start that lesson, first of all, please like, do and subscribe my channel so that you will be updated with the latest lessons which I am teaching you. So here is the starting of the lesson, which is the nutrition in plants. So first of all, as the name indicate, we know that we will study here about the nutrition and plants. So what is nutrition? The process by which an organism take in food and uses it to produce energy to carry out daily activities is called nutrition. कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, खाना ले रहे हैं, ठीक है. खाना क्या हो रहा है, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और वहाँ से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है. तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं. अब ये न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए, बिकॉज वी आर डूइंग डेली different type of activities, like we are playing, we are breathing, walking, running, studying. So for doing all such type of activities we need energy, and that type of energy only we will get with the help of our food. So here we are getting nutrition from two different types, right? First one, we are getting the nutrition from the animals. Secondly, we are getting the nutrition from the plants. First, we are getting the nutrition from the animals in the form of milk products, like from butter, ghee, cheese, or we can say eggs, etc. Secondly, nutrition in plants. Nutrition in plants mean to say we are getting nutrition from different type of plants, like in the form of the pulses, vegetables, fruits, etc. Okay, so now here we will differentiate nutrition into two types. First one is the autotrophic nutrition and second one is the heterotrophic nutrition. We have seen that, or we have do that, there are many type of green plants which are able to make their own food with the help of photosynthesis. Auto, what do you mean by auto? Auto का मतलब होता है self, ठीक है. तो जो प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स. मीन टू से दे आर डूइंग द ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड, दैट इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इसका मतलब जो प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, अब वो अपना खाना खुद किससे बनाएंगे, एक प्रोसेस से बनाएंगे. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस? दैट प्रोसेस नेम इज फोटोसिंथेसिस. As it is clear from the name, photo mean to say light and synthesis mean to say process, right? So what is photosynthesis? It is a process in which plants use the sun's energy, because photo already mean to say light, right? Sun's energy to convert water and carbon dioxide into carbohydrate or glucose to get their energy, right? Here starch and glucose mean to say the food of the plant, right? That process is photosynthesis. Here they have given you shown the equation in which CO2 mean to say carbon dioxide plus H2O water in the presence of sunlight, what it will make, starch, or C6H12O6 plus oxygen O2. O2 is as a bioproduct. So इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ से क्या मिल रही है, फ्री की ऑक्सीजन मिल रही है, राइट. एंड उनका खाना तो बन ही रहा है साथ में. सो दैट इज अबाउट फोटोसिंथेसिस. नाउ देयर आर कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होगी? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करती है, राइट. सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर दैट? फर्स्ट वन इज द chlorophyll, sunlight, air and water. So these are the conditions according to which we are doing the process of photosynthesis. What is chlorophyll? So chlorophyll is basically green color pigment which is present in the plants. जो भी प्लांट्स है वो हरे क्यों है? क्योंकि उनमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं. उसकी वजह से उनका कलर कौन सा होता है, ग्रीन होता है. सो अगर जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होगा उन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, राइट. सेकेंडली सनलाइट. एज वी आर क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, सनलाइट तो हमें चाहिए. तो हम क्या करते हैं,
Sunlight is trapped by the chlorophyll of the green plants. This energy is used to convert carbon dioxide and water into the carbohydrates. That is already clear from the equation of the photosynthesis. जो एनर्जी है सन की, हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? खाने में कन्वर्ट कर देते हैं, मीन टू से प्लांट्स, स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं. Third one, air, right? The presence of air, or more specifically carbon dioxide, is essential for the photosynthesis. Carbon dioxide is obtained from the atmosphere through small openings, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं. तो हमारे प्लांट्स में क्या होता है, लीव्स में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं, राइट? स्टोमेटास क्या करते हैं? Each stomata is surrounded by two half मून शेप्ड सेल कॉल्ड द गार्ड सेल. जो स्टोमेटा होता है हमारा, वो ऐसी होती है उसकी शेप जैसे हाफ मून हो, राइट? उसके आसपास की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गार्ड सेल, जो उसको प्रोटेक्ट करती है, गार्ड करती है. विच रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. जो ये चीज़ देखती है कि कब स्टोमेटा खुलेगा और कब स्टोमेटा बंद होगा. अगर तो प्रॉपर अमाउंट में उसे लाइट और वाटर मिल गया तो गार्ड सेल क्या कर देंगे? उसको स्वेल कर देंगे, फुला देंगे, एंड उसकी वजह से क्या हो जाएगा? स्टोमेटा खुल जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो आउटर एयर में है वो अंदर एंटर कर जाएगी और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी प्लांट को, राइट? वाटर मिल जाएगा, सनलाइट मिल जाएगी, मीन टू से सारी कंडीशन उसको मिल जाएगी ताकि वो इजीली अपना खाना बना सके, मतलब स्टार्च बना सके. क्लियर टू ऑल? नाउ लास्ट वन रिक्वायरमेंट, विच इज वाटर. पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आप पानी पीते हो, आपकी ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है. मैं पानी पीती हूँ, ऐसे ही प्लांट्स वगैरह भी क्या करते हैं? वो पानी पीते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है? एक तो फोटोसिंथेसिस में पानी हेल्प कर रहा है, राइट? एक ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में भी हेल्प कर रहा है. अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, एक होता है एक्साइलम, एक फ्लोएम होता है, ठीक है? वाटर इज कैरिड बाय द स्टेम टू द लीव्स थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड जाइलम. तो एक्साइलम क्या करता है? जो पानी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो स्टेम ने पानी प्रेजेंट किया होता है अपने अंदर, उसको कहाँ तक पहुँचाता है? पत्तों तक पहुँचाता है. प्लांट के पत्तों तक पानी मिल गया, एक तो वो फ्रेश रहेंगे, सेकेंडली वो ट्रांसपिरेशन इजीली कर पाएंगे, ठीक है? ये काम किसका होता है? एक्साइलम का होता है. फोलम का क्या काम होता है? वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, शुगर वगैरह होती है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाता है उस चीज़ को. ये फोलम का काम होता है. तो अभी प्लांट को क्या मिल रहा है? पानी भी मिल रहा है, और प्लांट को क्या मिल रहा है? स्टार्च भी मिल रही है, मतलब खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर वे में होगी, राइट? दैट्स इट. दीज आर द ओनली कंडीशंस. नाउ सेकेंड टाइप, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर प्लांट एंड एनिमल फॉर देयर फूड. अभी क्या ऐसे होता है कि जब हमारे मदर खाना बनाते हैं, ठीक है, मदर को खाना बनाना आता है, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं. मतलब मदर क्या हो गए? ऑटोट्रॉप्स हो गए, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं. अब हम बच्चे हैं, हमें बच्चों को बनाना नहीं आता खाना, तो हम किस पे डिपेंड हो गए? अपनी मम्मा पे डिपेंड हो गए. मतलब हम क्या हो गए? हेटेरोट्रॉप्स हो गए. हम अपने खाने के लिए अपने मम्मा पे डिपेंड है, अपने पापा पे डिपेंड है, राइट? जब खाने के लिए कोई भी प्लांट किसी और प्लांट पे या किसी और इंसेक्ट पे डिपेंड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है? अब हेटेरोट्रॉपिक डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में: पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. फर्स्ट इज द पैरासाइटिक प्लांट्स. पैरासाइट वहां से क्लियर हो गया, इसका मतलब इसमें क्या यूज हो रहे हैं? पैरासाइट्स यूज हो रहे हैं, राइट? अब पैरासाइटिक का मतलब क्या हो गया? प्लांट्स दैट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट्स. जो प्लांट अपना खाना किसी और प्लांट से ले रहा है उसको क्या बोलते हैं? हम पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं. और जो प्लांट अपना खाना दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? होस्ट, राइट? जैसे हम किसी के घर जाते हैं, हम क्या होते हैं? वहाँ पे गेस्ट होते हैं, और जो हमें सर्व कर रहा होता है वो क्या होता है? होस्ट होता है. सिमिलरली हियर, अगर ग्रीन प्लांट किसी के घर गया, ठीक है, किसी और के घर गया जिसके पास ऑलरेडी खाना है, तो जो गया है ग्रीन प्लांट वो क्या होगा? गेस्ट होगा, और जो उसको खाना दे रहा है वो वाला प्लांट क्या होगा? होस्ट होगा, ठीक है? सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द पैरासाइटिक प्लांट. सो पैरासाइटिक प्लांट्स आर नॉन ग्रीन. अब
ये क्या है, नॉन ग्रीन मीन टू से वो ग्रीन नहीं होगा पैरासाइटिक प्लांट, उसको ग्रीन होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर वो ग्रीन होता मीन्स उसमें क्लोरोफिल होनी थी, अगर उसमें क्लोरोफिल होती तो उसने अपना खाना खुद ही बना लेना था, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी किसी और प्लांट की कि आप जाके वहाँ से किसी और से डिपेंड हो गए खाने के लिए। बट हियर व्हाट इज़ द केस, पैरासाइटिक प्लांट्स आर नॉन ग्रीन सिंस दे लैक क्लोरोफिल, अगर उनमें क्लोरोफिल नहीं होता ना वो फोटोसिंथेसिस कर सकते, इसका मतलब वो किसी और पे डिपेंड हो गए अपने खाने के लिए, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आप क्या बोल सकते हो, कसकट्टा और डॉडर, ओके। सेकंड इज द सेप्रोफाइटिक प्लांट। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, प्लांट्स दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वो प्लांट्स जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, ठीक है। और ये भी प्लांट्स अगेन नॉन ग्रीन होते हैं, क्योंकि इनको भी अपना खाना खुद से नहीं बनाना होता है, क्योंकि ये तो अपना खाना फिर डेड चीज़ों से ले रहे हैं, ठीक है। और ये नॉन ग्रीन होते हैं, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो इंडियन पाइप की। इंडियन पाइप का कलर आपने देखा होगा, ये एक प्लांट है जिसका कलर वाइट होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसका ग्रीन कलर भी नहीं होता। एंड we often find saprophytic plants in deep shade in tropical forest, ये ज़्यादातर उन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है जहाँ पे डीप शेड होती है, मतलब ज़्यादातर छाँव रहती है वहाँ पे, क्योंकि अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट होती है, बट इनको तो बनाना ही नहीं अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो ये वहाँ पे भी सर्वाइव कर देते हैं जहाँ पे डार्क शेड्स होती हैं, राइट। एंड पाइप, कॉरल रूट और भी एग्जाम्पल्स है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स के। Now third one I am talking about here, symbiotic plant. Symbiotic plant is a type of relationship within two organisms associate with each other in a mutually beneficial manner. अभी यहाँ पे क्या है, ओके, दो ब्रदर्स है, ठीक है, एक ब्रदर पढ़ाई में अच्छा है, एक ब्रदर खेलने कूदने में अच्छा है, राइट। तो जो पढ़ाई में अच्छा है ब्रदर, वो हेल्प कर रहा है दूसरे की पढ़ाई के लिए, एंड जो खेल कूद में अच्छा है वो हेल्प कर रहा है अपने दूसरे ब्रदर की कि उसको स्पोर्ट्स वगैरह आ जाए, ठीक है। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी बन गया, बेनिफिट वाला रिलेशनशिप भी बन गया, ठीक है, और एक दूसरे की ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं। तो सिमिलरली इन दिस केस व्हाट दे आर डूइंग, लाइक आई एम टेकिंग हियर द एग्जांपल ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे बीन्स हो गया या फिर पीस हो गया, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने रूट्स में एक बैक्टीरियम होता है, राइजोबियम बैक्टीरियम, उसको रखते हैं। वो क्या करता है, राइजोबियम प्रेजेंट इन द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड that can be used by the plant, and the plant on other hand provide nutrition to the bacterium. Another example of symbiotic relationship is lichens, right? अब इसमें क्या हुआ, जो रूट्स में उसके बैक्टीरिया प्रेजेंट था, उसने क्या किया, एटमॉस्फेयर की जितनी भी नाइट्रोजन थी उसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन कंपाउंड में, राइट। एंड प्लांट क्या कर रहा है, बैक्टीरियम को न्यूट्रिशन दे रहा है, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मतलब उनका रिलेशनशिप कैसा हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, राइट। बैक्टीरिया को वहाँ से अपना न्यूट्रिशन मिल गया और प्लांट को क्या मिल गया, नाइट्रोजन कंपाउंड मिल गया, राइट। सो एग्जांपल आप इसकी क्या ले सकते हो, लीचेंस ले सकते हो। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, इंसेक्टिवोरस प्लांट। एज द इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम दैट इंसेक्ट मतलब कीट पतंगे जो होते हैं, राइट। तो वो प्लांट्स दैट गेट सम और मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिशन बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग एनिमल, मेनली इंसेक्ट्स आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट। वो प्लांट्स जो ज़्यादातर क्या करते हैं, एनिमल्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, जैसे बटरफ्लाइज वगैरह होगी उनको खाते हैं, या फिर और इंसेक्ट्स हो गए उनको खाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लो यहाँ पे सनड्यू की ले लो या वीनस फ्लाई ट्रैप की ले लो, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो जब इनके पास कोई भी इंसेक्ट आता है ये उसको इंट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर और फिर अलग अलग तरीके के जूसेस वगैरह छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर आके पूरा गल सड़ जाते हैं, ठीक है, एंड फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनके जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं उनके अंदर के वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
इनका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। सो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं प्लस इंसेक्ट्स भी खाते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिशंस इनको सॉइल से नहीं मिल पाता उन न्यूट्रिशंस को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट खाते हैं। लाइक नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट नहीं होती आपके सॉइल में तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स खा देते हैं, ताकि वहाँ से इनका क्या पूरा हो सके, अपनी न्यूट्रिशन भी पूरी हो जाए और एज वेल एज खाना तो बना ही रहे हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, राइट। सो एग्जांपल में आपका सनड्यू आ गया, वीनस फ्लाई ट्रैप आ गया है, और नाउ last one topic which is left, that is the nutrition get replenished into the soil. So जब हम बार बार उगाते ही रहते हैं, राइट, बार बार फसलें उगाते रहते हैं, पहले हमने वीट उगा ली, फिर हमने राइस उगा लिया, फिर उसके बाद फिर से वीट, फिर से राइस, जब हम ऐसे बार बार करते रहते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, वीट और राइस से ऐसे वाली फसलें हैं जो हमारे सोइल के बीच का जितना भी नाइट्रोजन होता है उसको यूज़ कर लेते हैं, उसकी वजह से नाइट्रोजन सोइल में रहता ही नहीं है, राइट। तो नाइट्रोजन को वापस से सॉइल में करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग द manure and we are using the fertilizers. So one thing I want to clear to the students that there is a difference between the manure and fertilizer. Sometimes they get confused between both of them. मैन्योर एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे हम गाय के गोबर को, जब गांव में होते हैं गाय के गोबर को हम क्या करते हैं, सुखा लेते हैं, उसको ऐसे हम मैन्योर यूज़ करते हैं खेतों में, तो ये ऑर्गेनिक मैटर है, राइट। ये लॉन्ग टर्म में आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जो फर्टिलाइजर्स है वो केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स जब हमारे खेतों में जाते हैं लॉन्ग टर्म में ये हमारी फूड पाइप में एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें डिसीजेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो ये प्रेफर किया जाता है कि जितने भी फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर मैन्योर ही यूज़ करें। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट। सो क्या होता है कि जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है सॉइल में, तब हम ऐसा मतलब बोला जाता है कि हमें ज़्यादातर पीस और बीन्स वगैरह उगाने चाहिए। वीट और राइस के बाद पीस और बीन्स उगाने चाहिए। उससे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होती है। व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन? इसमें ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है पीस और बीन्स में, ठीक है, वो क्या होता है, जड़ों में छोटी छोटी सी गांठें बनी होती हैं, उसमें नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर से होता है, प्लांट क्या करता है अपनी जड़ों में एब्जॉर्व कर लेता है उसको, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड बना देता है। एंड जो सोइल में ऑलरेडी कमी हो चुकी होती है नाइट्रोजन की, उसकी वजह से वो नाइट्रोजन की कमी भी पूरी हो जाती है। सो दैट्स इट। एंड आफ्टरवर्ड जो हमारी क्रॉप की यील्ड होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। So that is the end of the lesson. If you have any type of queries about the lesson, you can comment in the comment section, and please like my video and subscribe on the channel. Thank you.